So to perform the load calculations, we need to know about the survey of building. Okay, we need to know about the survey of building. So in the survey of building is nothing but getting the data about the building which you need to use for the load calculation. Okay, load calculations करने के टाइम पे हमें बिल्डिंग का सर्वे करना पड़ेगा. सो सर्वे ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड है. ओके, सर्वे ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड है. एम आई ऑडिबल वसीम? यस सर. और फिर माइक ऑफ बोला है. फर्स्ट हमको बिल्डिंग सर्वे करने के लिए हमको रेफरेंस ड्राइंग चाहिए. सर माइक ऑफ सर वसीम, डिस्टर्बेंस. तो क्या चाहिए? रेफरेंस ड्राइंग्स चाहिए. सो वो रेफरेंस ड्राइंग्स लेआउट भी हो सकता है, शॉप ड्राइंग्स भी हो सकता है. ओके, एलिवेटेड व्यूज भी हो सकता है. So these are all called as reference drawings. So after reference drawings, you need to know about the location. Location of the building. तो बिल्डिंग लोकेशन हमको मालूम होना जरूरी है. So after identifying the location of the building, we need to know about, so after identifying the location, we need to know about the orientation. So orientation is nothing but the directions. Okay, a direction of the building. Later, we need to know about the application of the building. What type of application? Is it a residential application, commercial application? Okay, ऐसा application भी हमको मालूम होना जरूरी है. So after identifying the application, we need to know about the construction materials. Like walls,
windows, floor, ceiling, partitions, partitions, floor, ceiling, roof, ये पूरा हमें मटेरियल, डायमेंशंस, कलर, ये पूरा चीज हमको मालूम होना जरूरी है. After construction material, we need to know about the internal loads also. Internal loads. So in the internal loads like number of floor, number of people, so उसमें lighting, number of people, lighting, and appliances, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है, यह पूरा चीज हमको पता होना जरूरी है. So before going to start the load calculations, we'll identify all these values. So after identifying all these values, later we'll do the load calculations. Make a note of this. Make a note. Done? Yes, sir, done. Okay, wait 1 minute.
मम्मी बैठो So while doing the load calculations, so in this load calculations we'll be going to calculate room sensible heat. हमें क्या कैलकुलेट कर रहा है? रूम सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर रहा है. हमें कैलकुलेट करता है रूम लेटेंट हीट as well as we calculate total heat. Okay, and then finding TR, tons of refrigeration, finding ESHF, that means effective room sensible heat factor, and ADP, apparatus dew point temperature, and finding CFM. Okay, CFM भी हमें find out कर रहे हैं. So the heat loss or heat gain बोल सकता है, heat loss भी बोल सकता है, heat gain भी बोल सकता है. Heat loss or heat gain, Q equals to A into U into delta T, A into U into delta T. Okay, area into U factor into delta T. Therefore, Q equals to heat gain in BTU per hour. Q equals to heat gain in BTU per hour. A equals to area in square feet. A equals to area in square feet. U equals to coefficient of heat transfer. U equals to coefficient of heat transfer, BTU per hour per square feet. BTU per hour per degree of Fahrenheit into square feet. Okay, and delta T equals to change in temperature. Delta T equals to change in temperature. Therefore, so U factor is defined. Okay, U factor is defined. The thermal coefficient U factor is measure the rate of heat travel through a material. Okay, it is the rate of heat travel through a material. Okay. Suppose, what is resistance basically? Resistance means the heat which is going to, okay, the heat which is going to afford, or we can say offended by the, opposed by the wall. कितना हीट को अपोज कर सकता है एक मटेरियल, उसको बोलता है यू फैक्टर, रेसिस्टेंस बोलता है. सो उसका उल्टा, वो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? यू फैक्टर होता है. ठीक है. द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यू वैल्यू इज मेजर्ड एज रेट ऑफ हीट ट्रैवल थ्रू ए मटेरियल. एक मटेरियल से कितना हीट ट्रैवल हो सकता है उसको बोलता है हमें यू फैक्टर. नेक्स्ट, walls and roofs are typically consist of multi-layer with different material. एक एक मटेरियल से प्लास्टर होता है, उसके अंदर फायर ब्रिक्स होता है, उसके बीच में इंसुलेशन होता है. एक एक मटेरियल का एक एक आर वैल्यू होता है ना, हमें सबका आर वैल्यूज सम करके
उसका रेसिप्रोकल करता है हीट फैक्टर के लिए, ठीक है। द व्यू फैक्टर ऑफ a specific wall or roof is calculated by summing the thermal resistance R value of each of these layers then taken in the reverse. Okay. So cooling load components. So what are the cooling load components we have? We have infiltration, solar heat gain through glass, walls, roof, partition, floor, light. Okay, all these are the heating components. So ये heating और cooling components को हमें एक एक फैक्टर को कैलकुलेट करके वो फैक्टर्स का, ठीक है, एक एक फैक्टर को कैलकुलेट करके वो फैक्टर्स का हमें पूरा लोड निकाल के कितना हीट जनरेट हो रहा है वो रूम के अंदर, उतना हीट को निकालने के लिए, ठीक है, उतना हीट को निकालने के लिए कितना, सॉरी, उतना हीट को निकालने के लिए हमको कितना कैपेसिटी ऑफ मशीन चाहिए, ये चीज हमें फाइंड आउट करता है हीट लोड कैलकुलेशन पे, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग लिया, इसमें ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है, ठीक है, ये G+2 बिल्डिंग है, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, 2 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, 2 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। सो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का दोनों का लेआउट सेम है, ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है, एक फ्लैट 1 है, एक फ्लैट 2 है। सो ये ओरिएंटेशन इधर दिया है, ओरिएंटेशन, दैट मींस दिस इज नॉर्थ साइड, दिस इज नॉर्थ साइड, दिस विल बी ईस्ट साइड, this will be south side and this will be west side. बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं सेकंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम को कैलकुलेट कर रहा हूं पहले। Okay, so we are considering wall size. Okay, we are considering wall window size as 4 feet by 3 feet. Window size 4 feet by 3 feet. Door size 7 feet by 3 feet. Door size 7 feet by 3 feet. Height from floor to ceiling. Height from floor to ceiling is 12 feet. Okay, height from floor to ceiling is 12 feet. ये चीज हमें कंसिडर करता है, ये हमको कौन देता है, ये चीज हमको आर्किटेक्ट देता है, ये वैल्यूज पूरा हमको आर्किटेक्ट देता है। नहीं दिया तो हमें आर्किटेक्ट से पूछना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्लाइंट, आर्किटेक्ट आपको कांटेक्ट पे नहीं है तब हमारा क्लाइंट से पूछता है। प्रोजेक्ट नेम, here project name, first we are taking project details. In the project details, first we are taking project name. Project name is Dhanush Engineering Services India Private Limited. Dhanush Engineering Services India Private Limited. Location, so we are considering the location Hyderabad. Okay, हमें Hyderabad location को
कंसिडर कर रहे हैं। एंड क्लाइंट नेम whoever the client he is giving, उनका क्लाइंट नेम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर, हमें अभी सेकंड फ्लोर में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन द सेकंड फ्लोर। ओके, स्पेस यूज्ड फॉर मास्टर बेडरूम, फ्लैट 1 रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। ओके, मास्टर बेडरूम फ्लैट 1 रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। ओके, फ्लैट 1 में मास्टर बेडरूम पे रेसिडेंशियल एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ द रूम, क्या है साइज ऑफ द रूम? 12.16 फीट इंटू 10.41 फीट, 12.16 फीट इंटू 10.41 फीट। सो इसमें ये कैसा मिला आपको? ये देखो 12 feet to inch. Someone please be on mute, sir. सर डिस्टर्ब हो रहा है सर। So 12 feet 2 inch, 10 feet 5 inch है। वो कैसा है? 12 feet 2 inch, 10 feet 5 inch है। ओके, 12 feet 2 inch, 10 feet 5 inch को हमें क्या करता है? ओके, 12 feet 2 inch और 10 feet 5 inch में उसको कैसा कन्वर्ट करना है? वो फीट एंड इंचेस में है, बट व्हेन यू वांट टू मल्टीप्लाई विथ समथिंग यू नीड टू गो विथ feet and inches. Only feet are only in inches. So वो 12 feet 2 inch को 12 feet 1 inch में 1 feet में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। So 2 divided by 12, 2 divided by 12, so 12.16 feet। 12.16 फीट हो जाता है। ठीक है, 10 feet 5 inch को 10 plus 5 divided by 12, 10 plus 5 divided by 12, 10.56, 10.42 फीट आ जाता है। ठीक है, तो एम्बिएंट कंडीशंस, आउटडोर कंडीशंस को हमें लेना पड़ेगा। सो आपको मैं फर्स्ट मटेरियल शेयर करता हूं। सो मैं आपको डेटा शीट्स एक मटेरियल भेजा है, मिल गया व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो डेटा शीट्स हमें लेना पड़ेगा। फर्स्ट हमें आउटसाइड डिजाइन कंडीशंस का हमें फाइंड आउट करेंगे। आउटसाइड डिजाइन कंडीशंस पेज नंबर 3 से मिलता है सर। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ का है? हैदराबाद का प्रोजेक्ट है। सो एज इट इज हैदराबाद प्रोजेक्ट, okay, as it is Hyderabad project, I am taking summer ambient conditions. So dry bulb temperature 106, wet bulb temperature 78, and relative humidity 28. 106,
78 and 28. And comfort conditions, okay, comfort conditions क्या है 75 degree Fahrenheit and 50% RH. So after finding out all these values in the psychometric chart, you are able to get this table. So as you are able to get this table, this is delta T. Room dry bulb difference in room dry bulb temperature is 31 degree Fahrenheit. Difference in grains equals to 35. Difference in dry bulb temperature 31 degree Fahrenheit. Difference in grains equals to 35. Okay, dore pare. Okay, 35. Therefore, now we'll start with solar heat gain through glass. हमें solar heat gain through glass से start करेंगे. So solar heat gain through glass means the glass should be exposed to sun. The glass should be exposed to sun. So as the glass should be exposed to sun, okay, so the glass needs to be in the direction of the sun. So in the following image, okay, in the following image we have two windows. ये मास्टर बेडरूम का, मैं पहले सिर्फ ये मास्टर बेडरूम को कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है. वी आर ओनली कैलकुलेटिंग फॉर मास्टर बेडरूम. सो ये मास्टर बेडरूम पे दो विंडोज है. इस तरफ एक विंडो है, इस तरफ एक विंडो है. देखा है? इधर एक विंडो है, इधर एक विंडो है. ये दोनों विंडोज में विच विंडो इज एक्सपोजिंग टू सन? Which window is exposing to sun? दोनों विंडोज पे which window is exposed to sun? फ्रंट साइड का विंडो है सर, फ्रंट साइड का. ये है ना? हाँ यही है. So this is in east direction, right? हाँ यस. This is in east direction. So as mentioned in the drawing, the size of the window, okay, as mentioned in the drawing, the size of the window is the size of the window is 4 feet by 3 feet. 4 feet by 3 feet. Therefore, area A will be 12 square feet. Area A will be 12 square feet. Now, so in the formula Q equals to A into U into delta T, A equals to 12 square feet. So U factor, U factor identify. Specification glass. Glass is made of ordinary glass with inside Venetian blend of medium color. ये भी हमको आर्किटेक्ट देता है. Okay, glass is made of ordinary glass with inside Venetian blend of medium color. So from page number 12, glass is made of ordinary glass with inside. Glass is made of ordinary glass with inside Venetian blend of medium color. 0.65. So U factor is 0.65. And delta T we need to find to find the delta T. First we need to know the latitude range from page number 3. Page number 3 पे आप हैदराबाद का latitude range चेक किया तो वो होता है 17.86 डिग्री नॉर्थ. 17.86 डिग्री नॉर्थ which is near to 20 degree north. So इधर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 16 में. अब पेज नंबर 15 देखा है तो सेम टेबल होता है 10 डिग्री होता है. ये पेज नंबर 16 है तो 20 डिग्री होता है. पेज नंबर 17 है तो 30 डिग्री होता है. अभी हमारा 20 डिग्री का नॉर्थ क्लोज है. इट इज क्लोज टू 20 डिग्री नॉर्थ.
So it is, as it is close to 20 degree north, so हमें क्या कर रहा है, what we are taking from page number 16. So हमें ये load calculations, what we are going to do is we are going to do the load calculations for peak day. The for highest day हमें load calculations ले रहे हैं. So as it is on the peak day, okay, the peakest day we are taking as the peakest day. So you need to identify the peak day. The peak day is May 21. May 21 is a top load. So why we are taking the peak load is, if your machine is able to withstand the top loads, then it is able to withstand the throughout the year. So इसीलिए हमें peak load को ले रहे. So as it is at 20 degree north, so हमें at 4 p.m. लेता है सर. Design temperatures are at 3 p.m. or 4 p.m. 3 p.m. पे भी डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो 4 p.m. पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं. 3 p.m. और 4 p.m. 3 p.m. or 4 p.m. ओके, 3 p.m. और 4 p.m. हमें कंसिडर करना है. समय 4 p.m. को कंसिडर कर रहे हैं. At 4 p.m. if you are able to see, east side it is 12 BTU per hour. East side it is 12 BTU per hour. West side it is 163 BTU per hour. North side it is 23 BTU per hour, and south side it is 12 BTU per hour. Now we are calculating for east side, it is 12 BTU per hour. Therefore, Q BTU per hour A into U into delta T, A into U into delta T, which is 93.6 BTU per hour. Okay, 93.6 BTU per hour. Okay. Make a note of this. Make a note of this.
Is it done? Make it fast. डन सर। सर हेलो Yes. सर, वो ग्लास का सर कलर किसी भी कलर में नहीं रख सकते हैं क्यों? सर आर्किटेक्ट क्या देता है वही लेना है हमें। आप आर्किटेक्ट ब्लैक कलर देता है, आप जाके बोलते हैं मुझे ब्लैक पसंद नहीं, व्हाइट डालो। तो ऐसा पॉसिबल है ना कलर? हाँ, ग्लास का कलर का कुछ इफेक्ट है यहाँ पे? इफेक्ट है ना। लाइट कलर will absorb sorry, light color will reflect more, dark color will absorb more। एंड वो भी वेवलेंथ का भी फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, इसलिए वो आर्किटेक्ट देता है, उसका हिसाब से यू फैक्टर लेता है। वो कैसे उसके अकॉर्डिंग हम कलर को डिफाइन करते हैं, कौन सा कलर बेस्ट होगा? हमें डिफाइन नहीं करता है कलर, कलर डिफाइन करता है आर्किटेक्ट। ओके सर। आर्किटेक्ट क्या कलर देता है उसका हिसाब से हमें लोड क्या, उसका हिसाब से हमें यू फैक्टर सेलेक्ट करता है। ओके। हो गया सर। जस्ट आप ये लिख दो बस, ये चीज इसका जरूरत नहीं है।
Done. Yes, sir. Done. इसको ड्रा करना है सर। नहीं, सिर्फ कंसिडरेशंस लिखो। हो गया सर। सर कंप्लीट। सर कंप्लीट। सर कंप्लीट हो गया है।
So from the table, page number 5. From the table, page number 5. पेज नंबर 3 लिखा है सर। Sorry, 3. हो गया सर। सर कंप्लीट। सर कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना है सर। हाँ, करना है।
Yes, sir. Huh?
डन हो गया। हो गया सर।
Done. Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर BTU क्या है सर फुल नेम? ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। ओके सर लैटिट्यूड क्या है यहाँ पे? हाँ, लैटिट्यूड लैटिट्यूड मालूम नहीं क्या होता है।
क्या यहाँ पे क्या बता रहा है वो नहीं समझ पाया मैं। कहाँ? ये रेंज ऑफ लैटिट्यूड में हाँ, सर चेंज इन टेम्परेचर के अंदर जो लिखा है मैंने क्या क्या? सर लैटिट्यूड रेंज ऑफ लोकेशन हाँ, हैदराबाद का लैटिट्यूड रेंज पेज नंबर 3 से मिलता है। ओके पेज नंबर मतलब 3 उसमें से। सारे हाँ, उसमें उस लोकेशन का टॉलरेंस रहेगा क्या मतलब ड्यूरेशन होना चाहिए वैल्यू का वो लोकेशन का लैटिट्यूड रेंज का हिसाब से ही हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। इधर क्या लिखा है? इधर पेज नंबर 3 से लैटिट्यूड रेंज ऑफ हैदराबाद आता है 17.86 नॉर्थ। ठीक है, सो इट विल बी 20 डिग्री नॉर्थ। इधर देखो, इधर 20 डिग्री नॉर्थ है इधर। ओके वो पेज से ही देखना पड़ेगा। सपोज ये 10 डिग्री नॉर्थ है तो पेज नंबर 15 पे आप 10 डिग्री नॉर्थ का पेज मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। ये पेज नंबर 3। हैदराबाद का लैटिट्यूड रेंज कितना है? इधर लैटिट्यूड रेंज कितना है? 17.86 17.86 17.86, which is close to 20, right? Which is यस close to 20। ठीक है, ये कितना है इधर? 10 डिग्री नॉर्थ है ना इधर। यस सर ये पेज से हमें देख सकता है क्या? हैदराबाद का कितना है? 17.86 वो 10 में देख सकता है क्या? नहीं देखना है, क्योंकि हमको 20 भी है इधर। तो हमें बोल रहा है ना 20 डिग्री नॉर्थ का हिसाब से। सो ये पेज से हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है। ओके सर। सपोज आपका लोकेशन सपोज आपका लोकेशन అక్కడే ఉంది బయట मैसूर है मैसूर ठीक है कितना है इधर 12.2 12.2 विच इज 10 तो तब हमें 10 डिग्री नॉर्थ पे देखना पड़ेगा समझ पे आया ना ओके सर। next solar and transgain through walls solar and transgain through walls in this layout the wall is exposed towards east direction इसमें wall please be on mute Wasim the wall is exposed towards east direction. Therefore, gross area, total area of wall, 12.16 feet is the length. 12.16 feet is the length, and height is 12 feet. And height is 12 feet. Therefore, gross area is 145.92 square feet. 145.92 square feet. ये वॉल पे ऑलरेडी ये विंडो हमें कैलकुलेट किया है ना, वो वॉल पे हमें विंडो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट किया, वो विंडो को हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, वो विंडो को हमें निकालना पड़ेगा. सो 145.92 minus 12 which is 133.92 square feet. Which is 133.92 square feet. Now, area तो मिल गया. Now, U factor. So, wall is made of hollow concrete block with a mixture of sand and gravel aggregate of 8 inch thickness
on 3/8" plastron walls with a mixture of lightweight aggregate. Okay, the mixture of lightweight aggregate. तो पेज नंबर 15 से मिलता है सर. पेज नंबर 15 hollow concrete block of sand aggregate इधर है, of 8-inch thickness and 3/8" plastron walls with a mixture of lightweight aggregate is 0.43. The U factor is 0.43. And in this case, we need to find weight of the wall. So weight of the wall is 53 pounds per square feet. और कहाँ से मिलता है weight of the wall? इधर देखो, 8 इंच का बगल में है, 8 इंच का बगल में ब्रैकेट पे है. ठीक है. So 53 pounds per square feet. Now, so equivalent temperature difference हमें एरिया फाइंड आउट किया, अभी डेल्टा टी फाइंड आउट करना है. डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए हमें डेल्टा टी इक्वल्स टू T1 प्लस T2. डेल्टा टी में भी दो फैक्टर्स है, T1 प्लस T2. T1 इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस एंड T2 इज करेक्शन फैक्टर टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस. T1 is equivalent temperature difference and T2 is correction factor to equivalent temperature difference. Therefore, weight of the wall equals to 53 pounds per square feet, which is 60 pounds per square feet. Approximately हमें next value ले रहे हैं 60 pounds per square feet. So from page number 14, so page number 14, if you see here, they have given so weight of the wall. So weight of the wall is 60 pounds per square feet. Again, we need to take at 4 p.m. Same 4 p.m. हमें ले रहे हैं. East side it is 12 degree Fahrenheit. West side it is 26 degree Fahrenheit. North side it is 10 degree Fahrenheit and south side it is 26 degree Fahrenheit. So this is all T1, sir. This is all T1. नोट करना है सर. नहीं. So this is all T1. Now हमें T2 फाइंड आउट करना है. So T2 फाइंड आउट करना है तो that means T2. So we need to find correction factor. So to find the correction factor, we need to find two factors. One is daily range. एक daily range का चाहिए, पेज नंबर 3 से मिलता है daily range. So which is 14 degree Fahrenheit and equivalent temperature difference. Equivalent temperature difference is outside dry bulb temperature minus inside dry bulb temperature. Outside dry bulb temperature minus inside dry bulb temperature, which is 31 degree Fahrenheit. So from page number 20, if you come to the page number 20, page number 20 में आपको क्या मिलता है? करेक्शन फैक्टर टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है. करेक्शन फैक्टर टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस. ये टेबल में आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? 31 मिला है ना. इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिला है? 31 मिला है. ठीक है, दिस इज 31. सो डिजाइन टेम्परेचर डिफरेंस इज 31. हमको 31 नहीं है, इसलिए हमें ले रहा है 30 और 35. और डायली रेंज कितना है? 14 है. डायली रेंज 14 है. 14 में 30 का वैल्यू इज 18. 14 में 30 का वैल्यू इज 18 और 35 का वैल्यू 23 है. 35 का वैल्यू 23 है. ओके, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें क्या करना है?
18 minus, sorry, हाँ इधर 23 माइनस 18 5 होता है, 23 माइनस 18 5 होता है, और 35 माइनस 30 5 होता है. So as both are 5, therefore mean value is 1. So अभी 18 पे 1 ऐड करो, 9 19 हो जाएगा. ठीक है, 19 को 1 ऐड करो 20 हो जाएगा, 20 को 1 21, ऐसा किया तो 23. सो फॉर 31 के लिए 19 मिलेगा, 31 के लिए 19 मिलेगा. सो एज इट इज 19, add 19 value in, add 19 value as a T2, therefore delta T equals to T1 plus T2 east side 12 plus 19 31 degree Fahrenheit, west side 26 plus 19 45 degree Fahrenheit, north side 10 plus 19 29 degree Fahrenheit, and south side 26 plus 19 45 degree Fahrenheit. So as it is in the east direction, again delta T, sorry, Q equals to A into U into delta T. So therefore UA value is 133.92, U factor is 0.43, and delta T is 31. So which is 1785.15 BTU per hour. ठीक है, make a note of this. हाँ,
Make a note of this. नोट करना है क्या सर इसको? हाँ, करना है।
हो गया सर। हो गया सर।
सर सर हेलो हेलो, ये सर ईटीडी क्या है सर? इक्वलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, इधर लिखा है ना, इक्वलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके सर। Is it done? सर डन।
Is it done? Yeah. साला पूरा ग्राउंड खामोश होगा इस टाइम, जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है क्या हुआ? पूरा ग्राउंड खामोश होगा। सदमा होगा सब। इंडिया बाहर है। हो गया सर। पहला बोल्ड अक्षर में जो लिखा था वो हेडिंग होता है, उसे छोटा अक्षर में लिखा रहेगा। अगर एक लाइन में है छोटा अक्षर में लिखा हुआ है तो तो सब हेडिंग हो जाएगा। बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, बहुत सारा लाइन है, प्रति लाइन है तो वो कॉपी में आ जाता है। और बटन को क्या बोलते हैं पता है? सीडीए बोलते हैं। सीडीए फील्ड में जाता है। और लिंक वाला जो एंटर टाइम जो होगा लिंक हो गया सर। सीख जाएगा, बिना कोड जाने तो सीख जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। नेक्स्ट सर हो गया। ये चीज कोड है तो याद रखना पड़ेगा। अच्छा इस चीज से लगाते हैं तो ये हम पा लेते हैं उस चीज को। Okay. We'll meet tomorrow and we'll continue the class. Okay. सर बोलो। स्क्रीन सर शेयर करता हूँ सर, मेरा वो देख लीजिए थोड़ा, वो ड्राइंग देख लीजिए पिछला वाला। हेलो, एक मिनट वेट करो भाई, आप शेयर करो।
कसम से भाई बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ लगेगा। यार मेरे दिमाग में था कि सीएस कर देंगे ना, ये चाहिए ना भाई के लेक्चर में ना। यार अभी करो ना काम, इधर से कुछ कर लो तो आए, तो फिर क्या होगा, तुम इसको छोड़ के इधर आ जाओ। सर हाँ जूम करो। सर इस पॉइंट देखिए ऐसे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आगे ऐसे चले गए। उधर वेट करो, उधर वेट करो, पीछे आओ। उधर आप शू कलर बनाना है ना, 1400 CFM है ना उधर। यस सर। हाँ फिर आप ट्राउजर क्यों बनाया? ये नहीं चलेगा सर, वो नहीं चलेगा, शू कलर आना है उधर। ऐसा बनेगा ऐसा। हाँ ऐसा बना। तो वो तो फिर सर दो इसके आगे मतलब ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 30 या 14 यहाँ भी बना दिया। हाँ हाँ वो दोनों गलत है। ठीक है चलो चलो। एंड ये है सर, और ये देखिए सर नीचे से देखिए सर, ये सर ऐसे आए हैं ऐसे गए हैं, ठीक है यहाँ से ऐसे अभी आगे खत्म नहीं हुआ ना? हो गया सर, उसमें थोड़ा सा बच्चा उसमें दिखाना था आपको। हाँ, वो पे खत्म करो पूरा। सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इस पॉइंट पे। क्या? हाँ वो राइट है, सही है सर, सही है। इसी तरह सर नीचे वाला भी बनाएंगे तो। हाँ सही है। ओके सर, अभी वाला पॉइंट चेक कर लीजिए सर, ये देख रहे हैं सर नीचे कैसे आए, सही है। ये वाला पॉइंट सर, और इधर गए ऐसे पूरा और खत्म उसके करके बाद- मुझे ड्राइंग भेजो ये कल। तो बस सर मतलब कहीं भी अगर सर 1500 फ्लो रेट अगर अटैच रहेगा तो वहाँ पे शू कलर बना देंगे सीधा, या कोई भी एक लाइन रहेगा, कोई भी ब्रांच है कुछ 1500 जहाँ। हाँ मुझे लगा ना सर जैसे यहाँ पे था